Good morning, students. Today we read chapter 7 in geography and the topic is India in the world. You all well know that we live in India and the name of our country is India. What is the location of India? What is the population of India? And what is the longitude and latitude of India? We all read and get knowledge about to read this chapter. Okay, here are some description about India. That what is the length of India, what is the breadth of India, what is the area of India, and what is the location, what is latitude and what is longitude, what are neighboring countries, what are position of terms in area. These all are included in this chapter. So we start our chapter. So what is the length of India? The length of India is 3,240 kilometers from north to south. What is the breadth? The breadth is 2,933 kilometers from east to west. What is the area? 32,87,263 kilometers square. Location is in the northern eastern hemisphere. Latitude is 8 degree 4 Celsius, 37 degree 6 northern hemisphere. 6th is longitude 67 degree 7 Celsius, 97 degree 25 degree Celsius. Here is some description about India. Now we start our chapter and I am reading the chapter India in the world. India is a country of great geographical extent. In the previous chapters we all read about that there are very geographical extents. Like आप लोगों को पता है कि यहाँ कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सीजन चेंज होते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं. The area of our country is 32,87,263 square kilometer. तो हमारी जो लेंथ है वो इतनी है. It is the 7th largest country in terms of area and the second most populous country in the world. तो एरिया के हिसाब से ये 7th सबसे बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये कौन सी कंट्री है? हमारी सेकंड. ठीक है. The huge expanse of India contains a variety of natural landscapes ranging from the snow heights of the mountain ranges in the north, the West Indo-Gangetic Plains, the Thar Desert in the west, the Deccan Plateau and the coastal plains that extend from the Ganga Delta in Bengal to Kutch in Gujarat. अब देखो कि हमारे भारत का विस्तार यहाँ एक्सपेंस मतलब उसका विस्तार इतना है, वो इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें वहाँ पर क्या है कि नेचुरल लैंडस्केप भी है, बर्फ के पहाड़ भी हैं, माउंटेन रेंजेस भी है, गैंगेटिक प्लेन भी है. तो जैसे बंगाल से लेके कच्छ तक और गुजरात तक इतना हमारा इंडिया का जो है वो लोकेशन जो है वो फैला हुआ है. इंडिया नॉट ओनली हैज ग्रेट जियोग्राफिक प्रॉस्पेरिटी बट इट्स हिस्ट्री आल्सो गोज बैक टू एटलीस्ट 5,000 ईयर. कि ज्योग्राफिकल इसकी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री भी इसकी कितनी पुरानी है? हमारी 5,000 सालों पुरानी इसकी हिस्ट्री है. यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है according to geography, according to history. What is the location of India? India is located in the world largest continent, Asia. अब कहाँ पर ये situated? एशिया में है. It lies completely to the north of the equator, hence it belongs to the north hemisphere. ठीक है. ये कहाँ पर है? नॉर्थ इक्वेटर पर है, तो ये कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है. India is also situated to the east of the prime meridian, thus it lies in the east hemisphere in the northern east hemisphere of the earth. नॉर्थ में भी और ये थोड़ा ईस्ट में भी फैला हुआ है, तो यहाँ पर हमें ईस्ट की भी इन्होंने लेंथ बता रखी है. India stretches between 8 degree 4 north to 37 degree 69 to north latitude and from 68 degree 7 Celsius east to 97 degree 25 E longitude. So it is the location of India. The mainland of India is a large peninsula as it is surrounded by water bodies on 3 sides. The Indian Ocean in the south, the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. अब क्या है? इंडिया जहाँ लोकेटेड वहाँ क्या तीन तरफ हमारे तीनों तरफ पानी है. कौन कौन से है देखो आप? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड कन्याकुमारी. ओके. इंडियन ओशन. कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द southern most point of the Indian mainland. और ये जो कन्याकुमारी है कहाँ पर है? हमारा southern most point इंडियन mainland के ऊपर है. यानी कि इसमें
इंडिया के तीनों तरफ क्या है, पानी है, ये पानियों से घिरा हुआ एक द्वीप है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन mainland, लक्षद्वीप आइलैंड भी है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 36 कोरल आइलैंड। अब इस ग्रुप में कितने 36 आइलैंड हैं छोटे छोटे। Likewise, the Andaman and Nicobar group of islands lie in the Bay of Bengal to the southeast of India, which includes 572 islands. अब इसके अंदर में कितने सारे islands हैं? 572 islands हैं। The southernmost point of the Indian Union in the Indira Point, which is located in the Great Nicobar Island. अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। The Tropic of Cancer passes almost midway through the country and thus provides sufficient amount of temperature for agriculture purposes. अब ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये भी इंडिया में होके निकलती है, तो इससे क्या होता है कि जो खेती होती है वो बहुत ही इसकी वजह से जो मौसम बनता है या इसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। Being a subtropical country, India also receives good amount of rainfall. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी अच्छी होती है। The 82.5 degree E longitude passes almost halfway through India. We know that the local time of a place changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. ठीक है, आपको समझ में आया कि 4 मिनट बाद हमारा जो समय होता है वो चेंज हो जाता है। Thus, the difference in 29 degree of the prime meridian gives a time lag of nearly 2 hours. तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है। ये 4 मिनट से लेकर 2 घंटे भी आगे पीछे हो जाता है। Between अरुणाचल प्रदेश in the east and गुजरात in the west in their local stand. जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की जो टाइमिंग जो आती है उनमें चेंजेस होता है। In the other word, the sun rises 2 hours earlier in the east in Arunachal Pradesh than in the west in Gujarat. जो सन जो है वो राइज होता है वो ईस्ट में पहले होता है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेस में भी कितना 2 आवर्स का डिफरेंसेस रहता है। The follow the same time and to avoid confusion, the central longitude 82.5 degree east has been chosen as the standard meridian of India. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया है। The time on this meridian is referred as the Indian Standard Time (IST). The IST is ahead of the GMT by 5 hours 30 minutes. Okay? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने माना है और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो वो कैसे होता है 5 आवर्स और 30 मिनट्स के डिफरेंसेस पे वो पूरा सेट हुआ है। तो उस टाइम से हमें टाइम के बारे में करेक्ट पता चलता है। इंडियाज बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया की बाउंड्रीज पे कौन कौन सी कंट्री स्टेट्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है और इसकी नेबरिंग में कौन कौन से हमारे हैं, कौन कौन हमारे नेबर हैं इंडिया के, वो हमें इसके बारे में पता चलेगा। The Great Himalayan Range in the north, the Arabian Sea in the southwest, the Bay of Bengal in southeast, and the Indian Ocean in the south form the geographical boundaries of India. So these are all the geographical boundaries of India. कि साउथ ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि अरेबियन सी हिमालयन रेंज है हमारी नॉर्थ में, अरेबियन सी है हमारा साउथ वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है हमारा साउथ ईस्ट में, इंडियन ओशन है हमारा साउथ में, ठीक है। और ये सारी बाउंड्रीज हमारी बनी हुई है इस तरह से। द कंट्रीज विच शेयर देयर टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज विद इंडिया। अब जो अपनी टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज जो शेयर कर रही है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेकेंड है इन द नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान। थर्ड है हमारा इन द ईस्ट में हमारा बांग्लादेश एंड म्यांमार। फोर्थ है श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नियरेस्ट नेबरिंग अक्रॉस द सी। द नेहरू पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मैनस सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है अक्रॉस द सी, ये हमारे सबसे ज़्यादा नेबरिंग है। और ये गल्फ ऑफ जो मैनस है किसको सेपरेट करती है? श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड भूटान टुगेदर आर कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स भी कहलाते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ नेचुरली डेमोक्रेटिक एंटाइटी, हैड अ डिस्टिंक्ट फिजिकल, कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी,
which separate it from the rest of Asia. अब यहाँ के कल्चर अलग होता है, यहाँ के लोग अलग होते हैं, यहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, यहाँ की कस्टम अलग होती है, तो ये क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट बच रहा है वो उसको उससे सेपरेट करता है। अब यहाँ पर देखो आप इंडिया एट ए ग्लांस में आपको बता रखा है कि शॉर्ट में हम इंडिया को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लेंथ 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ, ब्रेथ है 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, लोकेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 सेल्सियस 37 डिग्री 6 नदन, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 सेल्सियस 97 डिग्री 55 ईस्ट, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द mainland कन्याकुमारी, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव। Here is a total description of India. I hope you all read this, and if you read this, it will help you in your competitive exams and you get very good knowledge about your country. Now we read administrative division of India. कि अब हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, हम लोग सिविक्स में भी पढ़ते हैं, अब ये भी हमें बताएंगे। India is divided into 29 states and 7 union territories for administrative purposes. ठीक है, इस इतने भागों में ये इंडिया हमारा बटा हुआ है। This division has been done mainly on the basis of language. और ये किसके बेसिस पे है, ये लैंग्वेज पे। जैसे आपको पता है कि हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। The main parts about the administrative unit of India are as follows. अब कैसे है वो हमें ये बता रहे हैं। In terms of area, Rajasthan is the largest state while Goa is the smallest state. हमारा जो स्टेट है राजस्थान वो सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, गोवा। Among the union territories, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are the largest, while the island of Lakshadweep in the Arabian Sea are the smallest. ठीक है, अब अंडमान निकोबार जो वो कैसा है, लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट तो कौन सा है इसमें, लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट है। States have been further divided into district and तहसील। जो स्टेट्स होते हैं वो किस में बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसील में। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहाँ की है, वो है उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर मैक्सिमम नंबर है डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। The 7 states in the north-east part of India are called the 7 sisters. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट आर दीज, दे आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। दे आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। चंडीगढ़ इज द मोस्ट कॉमन कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है। देयर आर 7 such states which share their boundaries with the neighboring countries. These are, और 7 states ऐसे हैं कि उनकी जो बाउंड्री है वो भी टच कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को भी टच कर रहा है और हमारे इंडिया में भी, लेकिन अभी तो ये पूरा इंडिया में ही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या है, दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है इंडिया की। तेलंगाना which was earlier a part of Andhra Pradesh came into existence as a new state in June 2014. तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश में इंक्लूडेड था उसको एक अलग से राज्य बना दिया गया था। कब, जून 2014 के अंदर। अब है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वो तो हो गया
डिवीजन कि कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं आपकी हिल्स होती है, कहीं रिवर्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आर द सिचुएशन एंड व्हाट आर द लोकेशन ऑफ इंडिया, वी रीड ऑल दिस इन दिस टॉपिक। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। India is a vast country and has a variety of landforms. The Indian mainland can be broadly divided into 6 physical divisions. They are, अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं और इसको 6 फिजिकल में बांटा गया है। 6 फिजिकल डिवीजन में अब वो कौन कौन सी हैं? द नदर्न माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिnsulaर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। On the page number 375, you have a physical map of India. When you read and watch it, you all find that what are the physical situation of India according to this map. This will help you to understand all this physical location of India. The northern mountains. The Himalayas are stretched from the northwest to the northeast along the northern boundary of India. They are about 2400 km long and their width varies from 500 km to 200 km. The Himalayas run into 3 parallel ranges. Okay? ये हमको इसका विस्तार बताया हुआ है कि कितना है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 500 to 200 किलोमीटर ये इतना फैला हुआ है। एक तरफ लंबाई है और एक तरफ इसकी चौड़ाई है और इसकी 3 पैरेलल रेंजेस है। व्हाट आर दीज? दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज और हिमाचल, द आउटर हिमालयाज और शिवालिक। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालयाज। इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर विद द ब्रेथ रैंकिंग फ्रॉम 120 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर। ये जो है लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस रेंज है हिमालयाज की। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 और इसकी ब्रेथ कितनी है? 120 टू 190 किलोमीटर। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज आर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, दालूगिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर and Nanda Devi 7870 meter. This range remain covered with snow throughout the year. तो यहाँ पर क्या होता है? पूरे साल बर्फ जमी रहती है। The 2 main rivers of northern India, the Ganga and the Yamuna, originate from the greater Himalayas. तो यहाँ की 2 नदियाँ मेन है। कौन कौन सी? गंगा और यमुना, जो ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। The lesser Himalayas of Himachal. The lesser Himalayas of Himachal lies to the south of the Himadri. ये हिमाद्री के साउथ में है। This range has an average elevation of about 3500 meter to 4500 meter and 60 kilometer to 80 kilometer wide. इसकी लंबाई है 3500 to 45 और चौड़ाई आएगी इसकी 60 to 80 किलोमीटर। Most hill stations such as Shimla, Kullu, Manali, Dalhousie, Mussoorie, Nainital and Darjeeling are situated in the lesser Himalayas. यहाँ पर क्या मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एरियाज हैं वो कहाँ पर है? लेसर हिमालयास में। जैसे आपने सुना है ना, शिमला, कुल्लू, लोग यहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा होता है और लोग यहाँ पर अपना हॉलीडेज एंजॉय करने जाते हैं। जब बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पर जो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होता है। तो दे आर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। Third, the outer Himalayas of Shivalik. The Shivalik lies to the south of the lesser Himalayas. Its length is 2400 km. Its breadth varies from 10 km to 50 km, and its height varies from 900 meter to 1200 meters. ठीक है? अब शिवालिक की क्या बता रखा है हमें? इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 10 to 50 किलोमीटर और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 900 to 1200 meters. India's highest peak, Godwin Austen or K2, which is the northeast part of Ladakh, is the Karakoram range. The world's highest peak, Mount Everest in the Himadri range, is located in Nepal. तो जो हाईएस्ट रेंज जो या हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है? हिमाद्री रेंज नेपाल में है। It has many broad valleys
Some other characteristics of the northern plains are, अब ये नदन का भी हमें बता रखा है कि इसने क्या कर रखा है, कितना रीजन कवर कर रखा है 3200 किलोमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी 150 to 300 किलोमीटर है, और इसके क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमें बता रखे हैं। नदन प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल एंड हैव वेरी स्लो स्लोप्स, ये क्या प्लेन होते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है। These plains are formed by alluvial deposits of river, hence they are very fertile and suitable for cultivation. इनके साथ जो मिट्टी बह के आती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, तो यहाँ इस जमीन पे खेती बहुत अच्छे से होती है। These plains have three main river system, यहाँ पर 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी है? The Indus river system, इंडस, सतलज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम। The Ganga river system, Ganga, Yamuna, Chambal, Indus, Betwa, etc. The Brahmaputra river system, Brahmaputra. The northern plains are separate over northern Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, West Bengal and some parts of the Assam. ठीक है, अब इसका नदन प्लेन कहाँ पर फैला हुआ है? नॉर्थ राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ आसाम। फर्टाइल लैंड, सुटेबल क्लाइमेट एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर मेड दिस रीजन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कि यहाँ पर क्या है, मिट्टी अच्छी है, पानी खूब है, तो यहाँ पर जो खेती होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, तो इन सारे स्टेट्स को क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। स्लिप ड्रॉड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड alluvial soil, ठीक है। The peninsular plateau, the peninsular plateau lies to the south to the northern plains and is surrounded by ocean on 3 sides। peninsular plateau जो है वो कहाँ पर है? साउथ से नॉर्थर्न प्लेन्स तक है, और ये भी क्या है? 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। It extends over an area of 1700 किलोमीटर in length from राजस्थान to कन्याकुमारी। इसकी लेंथ कितनी है? 1700 है, राजस्थान से कन्याकुमारी तक, एंड 1400 किलोमीटर in breadth from गुजरात to वेस्ट बंगाल। इतना चौड़ा है, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक। It is triangular in shape and is elevated at a height of 600 मीटर to 900 मीटर from the sea level। इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर और सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है? 600 to 900 किलोमीटर। This plateau region is surrounded from 3 sides. In its north are the Aravalli Hills, the Vindhyachal and the Satpura Hills. In its west are the western coastal plains and its east are the eastern coastal plains. The main rivers of peninsular India are Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The main hills of this region are Aravalli Hills, Vindhyachal, Satpura, Rajmahal Hills, Anamali Hills, etc. Out of these, Anamali Peak is the highest peak of South India. तो ये सारे यहाँ पर क्या है? हिल्स है, और इनमें सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक कौन सी है? साउथ इंडिया में है, कौन सी? अन्नामुडी पीक। रिवर नर्मदा डिवाइड्स पेनिnsula इंडिया 2 पार्ट्स। जो यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स which has the Chota Nagpur plateau and its east and the Malwa plateau in its north. The Bundelkhand and Bagelkhand plateaus are also in this region। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू नॉर्थ में है, और बुंदेलखंड और बागेलखंड जो प्लेट्यूज है वो भी इसी रीजन में है। Southern which is also known as the Deccan Tract, this region extends from Vindhyachal in the north to the south tip of Peninsula. The peninsular plateau slopes from west to east, hence most rivers of this are flow from west to east and enter into the Bay of Bengal. This plateau region has mostly volcanic and metamorphic rocks which are the storehouses of various kinds of minerals। ठीक है, यहाँ से नदियाँ कॉल करती है, बे ऑफ बंगाल भी है, और यहाँ पे बहुत सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है जहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छे मिनरल्स का वो स्टोर हाउस है। The coastal plains are situated on the east and the west of the Deccan Plateau. These plains are also known as the eastern coastal plains and the western coastal plains respectively। ठीक है, पानी है तो यहाँ पे समुद्र तट है वो भी ज़्यादा है। These plains are surrounded by the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea
में क्या है, वेस्ट में क्या है और साउथ में क्या है। तो ईस्ट में हमने जैसे पढ़ा है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशियन। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ। ठीक है, ये दोनों कन्याकुमारी में कहाँ मिलते हैं, साउथ में मिल जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर सुबर्णरेखा टू कन्याकुमारी इन द साउथ। दे आर 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर वाइड। ठीक है, ये कहाँ से निकल, सुबर्णरेखा से निकल रही है कन्याकुमारी साउथ से, और इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 100 to 120 किलोमीटर्स। These plains are formed by the alluvial deposits of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers and therefore are very fertile। अब यहाँ से भी ये सारी नदियाँ निकल रही हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है। Many lagoons are found near the coast. The Chilka Lake and the Pulicat Lake, Andhra Pradesh are famous among them। यहाँ से कई लेक भी निकल रही हैं। कौन सी है, एक तो चिल्का लेक ओडिशा की और एक पुलिकेट लेक है, वो कहाँ पर है, आंध्रा में है। The northern part of the eastern part is known as the northern Syracuse and the southern part is called the Coromandel coast। Western coastal plains they extend from the run of Kutch to Kanyakumari and are about 1500 km long। Their average height is about 64 km। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये कहाँ पर लिखे, रन ऑफ कच्छ से निकल रहे हैं कन्याकुमारी तक, और इनकी जो लंबाई कितनी है, लंबे कितने हैं 1500 किलोमीटर, और इनकी जो चौड़ाई है वो है 64 किलोमीटर्स। The northern part of the western coast is called Konkan and the southern part is called the Malabar coast। ठीक है, जो नदर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कोंकण, और जो सदर्न पार्ट है उसे कहेंगे हम मालाबार कोस्ट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर सुबर्णरेखा टू कन्याकुमारी। ये कहाँ से निकला हुआ है, सुबर्णरेखा से निकला हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ तक है, एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। ये रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक है। 1100 किलोमीटर लॉन्ग विद एन एवरेज हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 1100 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर है, और इसकी कितनी है 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 10 to 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। स्ट्रेट शोरलाइन विद वेल डिफाइंड बीचेस, सीधी सीधी यहाँ पर सीधे यहाँ पर किनारे समुद्र के, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सब बीचेस बने हुए हैं। ब्रोकन एंड अनइवन शोरलाइन, यहाँ पर क्या है कि टेढ़े मेढ़े जो रेखाएं हैं और टेढ़े मेढ़े तट बने हुए हैं। बिग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा है देयर डेल्टास। ये जो नदियां हैं वहाँ पर इनके डेल्टास बने हुए हैं। नो बिग रिवर फ्लोज इन दिस रीजन, न्यूमरस शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम फ्लो इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। छोटी छोटी नहरें यहाँ पर हैं, छोटे छोटे झरने से यहाँ पर हैं, कोई भी बड़ी नदी इस रीजन में नहीं बहती है। They are divided into two parts, the northern Syracuse and the Coromandel coast। यहाँ पे ये दो पार्ट से बना हुआ है, northern Syracuse और Coromandel coast में, और they are divided as the Konkan coast and the Malabar coast। The famous spots are विशाखापट्टनम and चेन्नई। यहाँ पर इसके दो फेमस स्पॉट हैं, कौन से, एक तो विशाखापट्टनम और चेन्नई। The famous spots are Mangalore, Kochi, Mumbai etc। So these are the differences about eastern and western coastal plains। Okay, you read all this, I hope you all understand about these differences। Now we read the Indian desert। The great Indian desert lies in the western part of India। It is also known as Thar desert। कहाँ पर, ये वेस्ट पार्ट में है, और इसे हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। This is the hottest, driest and sandy stretch of land in India। ये बहुत गर्म है, बहुत ड्राई है, और सैंडी यानी कि रेत वाला एरिया कहाँ का है, इंडिया का है। Due to less rain and insufficient amount of underground water, this land has very less vegetation। बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है, बहुत कम पानी, जमीन के अंदर पानी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेजिटेशन यानी कि कोई भी हम वनस्पति यहाँ पर बहुत मुश्किल से लगती हैं। The only big river of this region is the Luni। ठीक है, यहाँ पर यही है, और इसका भी पानी कैसा है, खारा है। The Great Indian Desert is primarily spread over Rajasthan and some part of Punjab, Haryana and Gujarat। सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरिया हमारा राजस्थान में है, उसके बाद थोड़ा कुछ पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है। Two groups of islands besides the mainland of India
अंडमान निकोबार जो वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के वहाँ पर सिचुएटेड है, और दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड जो वहाँ कहाँ पर है, अरेबियन सी के पास है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में कितने 572 आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है। आउट ऑफ विच 36 आर इनहैबिटेड। दिस आइलैंड आर एक्चुअली द पीक ऑफ सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है कि सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन्स है, वहाँ की पीक के ऊपर ये 36 उसमें से आइलैंड्स वहाँ पर हैं। दे इंक्लूड द बैरन आइलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। वहाँ की जो जमीन है वो कैसे बैरन है, और वो कब होता है एक्टिव, जब वहाँ पर बारिश होती है। दीज आइलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक रीजन, और इनमें क्या होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोल्केनिक रीजन के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लक्षद्वीप in the Arabian Sea at a distance of 220 km to 440 km from Kerala is Lakshadweep, a group of 36 island। इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 36 आइलैंड का ग्रुप है ये। These islands are made of coral polyps which are tiny marine animals। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे जो सी वाले एनिमल है, पानी वाले, वो भी पाए जाते हैं। These islands are known as paradise for tourists। और ये क्या किया जाता है, पैराडाइज यानी कि स्वर्ग है, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग ऑल, और इसमें सबसे बड़ा कौन सी, मिनिकॉय जो है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। अब देखो आप टी-सुनामी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाज स्ट्रक बाय टी-सुनामी in 2004। टी-सुनामी involves huge tidal waves generated by underwater earthquake on the sea floor। These killer waves cause extensive damage to life and property। जो टी-सुनामी की जो लहरें थी, समुद्र के पानी के अंदर कुछ हलचल जब हुई थी, तो उसकी वजह से टी-सुनामी लहरें आई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जाने गई थी, लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। Geographic unity of India। The major physical division together play an important role in shaping the climate, economic defense of our country। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया को अलग करने में या एक करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे, मौसम, इकोनॉमी, डिफेंस, हमारे को मतलब हमारी रक्षा कैसे हो सकती है। थ्रू मानसून इज द फिजिकल फीचर इंश्योर्ड कॉमन साइकिल ऑफ सीजन। मानसून से भी हमारा बहुत, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत उस पर डिपेंडेंट होती है। एज वेल एज ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट फॉर द होल कंट्री। द नदर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड द कंट्री विद फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। अब जो नदर्न पास्ट है और जो कोस्टल प्लेन्स है वो क्या करती हैं, हमारी कंट्री के लिए खाना, हमें खाने की चीज़ें और कुछ सूखे सामान जैसे काजू, बादाम, ये सब कहाँ पर वही होते हैं, ये हमें मिलती है, और इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही हैं। वी ऑल्सो गेट रिच मिनरल फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू विच ग्रेटली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे राष्ट्र का जो हमें वहाँ से चीज़ें मिल रही है, उससे हमें क्या, उस चीज़ों को हम बाहर ही बेचते हैं, तो अदर कंट्रीज़ की भी हमारे पास में करेंसी आती है, उनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। तो इस तरीके से सब पार्ट जो हमने इतने सारे पार्ट्स पढ़े हैं, दे ऑल आर हेल्पफुल टू बिकम ए लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया बिकम ए वेरी प्रॉस्परस कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस। I hope you all understand this chapter. You read all about it. Now here are some geographical terms you all do in your notebook, and question answer I am sending you in video. Now we do our exercises. A piece of land surrounded by water on three sides is called peninsula. Option B. India is located entirely in the northern hemisphere. Option C. Third. A slow moving river of snow and ice called glacier. Option B. The group of islands located in the Bay of Bengal. Option D. Andaman and Nicobar. The southernmost tip of the Indian mainland, Kanyakumari. Option B. Mark true or false each of the following statement. India is the second largest country in the world. Second largest है क्या ये? India is the सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है हमारी, क्या है ये, सेकेंड है या फर्स्ट है? इंडिया इज द सेवेंथ। कौन सी है हमारी, ये सेवेंथ है, तो है क्या सेकेंड, नहीं है, ये कौन सी है हमारी, सेवेंथ है, फॉल्स हो गया। द माउंट एवरेस्ट इज द
huge tidal wave generated by underwater earthquake, T tsunami. The place where the Western Ghats and the Eastern Ghats meet, Nilgiri Hills. The island country located to the south of India, Sri Lanka. The largest state of India, Rajasthan. The sequence is 5, 3, 4, 1, 2. You read all this chapter and do all your work in your notebook.